జమ్మూలో నిన్న ఉదయం అర్పాజ్ ఇంటిని కూల్చివేయడంతో భారతదేశమంతా సంచలనంగా మొదలైందని చెప్పాలి. భారతదేశంలో జర్నలిస్టులపై జరుగుతున్న దాడులపై ఆందోళన. వివరాల్లోకి వెళితే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో జర్నలిస్ట్ అర్పాజ్ ఉన్న ఇంటిపై జరిగిన దాడి విషయంలో జర్నలిస్ట్ అర్పాజ్ కుటుంబ నివాసాన్ని అధికారులు ఆక్రమణ నిర్మాణం పేరిట బుల్డోజర్లతో కూల్చివేయడం భారతదేశ వ్యాప్తంగా తీవ్ర చర్చకు దారితీసింది. ఇటీవల ఆయన ఒక పోలీస్ అధికారిపై డ్రగ్స్ స్మగ్లింగ్ విషయంలో ఆయనపై ప్రచురించిన కథనం విషయంలో ఈ చర్య జరగడం ఇది జర్నలిస్టులపై ప్రతీకార చర్యేమో అన్న అనుమానాలను బలపరుస్తుంది. నిన్న ధ్వంసం జరుగుతున్న సమయంలో అక్కడున్న పోలీసు సిబ్బంది అర్పాజ్ తో పాటు అతనిద్దరు తమ్ముళ్లను అడ్డుకోవడంతో అక్కడున్న సంఘటన ప్రదేశంలో ఉద్రిక్తత నెలకొంది. ఈ ఘటనను పలు మీడియా సంఘాలు హక్కుల సంస్థలు తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఇది పత్రికా స్వేచ్ఛను అణిచివేసే ప్రయత్నమని పేర్కొన్నారు. భారతదేశంలో జర్నలిస్టులపై దాడుల యొక్క గణాంకాలు వివిధ జాతీయ అంతర్జాతీయ సంస్థలు విడుదల చేసిన నివేదికల ప్రకారం భారతదేశంలో జర్నలిస్టులపై దాడులు ఆందోళన కలిగించే స్థాయిలో పెరుగుతున్నాయి. అందుబాటులో ఉన్న తాజా గణాంకాలు ఇలా ఉన్నాయి. 2014 నుంచి 2019 మధ్య కాలంలో పరిశోధనల ప్రకారం దేశంలో 198 పెద్ద దాడులు జరగగా అదే సమయంలో 40 మంది జర్నలిస్టులు హత్యకు గురైనట్లు గుర్తించారు. 2022వ సంవత్సరంలో రైట్స్ అండ్ రిస్క్ ఎనాలిసిస్ గ్రూప్ ప్రకారం దేశవ్యాప్తంగా 194 మంది జర్నలిస్టులు లక్ష్యంగా నిలిచారు. ఇందులో ప్రత్యేకంగా వార్తలు రాసినందుకు బెదిరింపులు, దాడులు, ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేయడం వంటి ఘటనలు ఉన్నాయి. 2023వ సంవత్సరంలో ఇండియా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇనిషియేటివ్ నివేదికల ప్రకారం సుమారు 226 మంది జర్నలిస్టులే లక్ష్యంగా మారారు. వీరిలో కొందరు బెదిరింపులు, అలాగే వేధింపులు, దాడులు, కేసులు, అరెస్టుల వంటి పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ గణాంకాలు దేశంలో జర్నలిస్టుల భద్రత తీవ్రంగా ప్రమాదాల్లోకి వెళ్లిందని సూచిస్తున్నాయి. పత్రికా స్వేచ్ఛపై ముప్పు. నిజాలను బయటపెట్టే జర్నలిస్టులు ఈ మధ్య కాలంలో లక్ష్యంగా మారుతున్న నేపథ్యంలో మీడియా స్వేచ్ఛపై అనేకమైన ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. నిపుణులు, మీడియా సంస్థలు, ప్రభుత్వాలు జర్నలిస్టులు ఎటువంటి ప్రలోభాలకు భయపడకుండా స్వేచ్ఛగా పనిచేసే వాతావరణాన్ని కల్పించాలని, లేదంటే ప్రజాస్వామ్యం యొక్క విలువలు దెబ్బతింటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. నిన్న జరిగిన ఈ ఘటనతో మరొక ప్రశ్న ముందుకు వచ్చింది. నిజాలను ధైర్యంగా బయటకు తీసుకొచ్చే జర్నలిస్టులు సురక్షితులా? నిన్న జర్నలిస్ట్ అర్పాజ్ ఇంటిని కూల్చివేత కేవలం ఆ ఒక్క కుటుంబం మీద జరిగే చర్య మాత్రమే కాదని, దేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛ, మాట స్వేచ్ఛ ఎంతవరకు ఇటువంటి ఒత్తిడులను ఎదుర్కొంటున్నాయన్నది బయటపెట్టిన సంఘటనగా నిలిచింది. అయితే నిన్న జరిగిన ఆ సంఘటనపై నిష్పక్షపాతమైన విచారణ జరగాలని, నిన్న ఎవరైతే జర్నలిస్ట్ అర్పాజ్ ఇంటిని కూల్చివేశారో ఆ బాధ్యులపై బాధ్యతను వహింపజేయాలని, జర్నలిస్టులు భయపడకుండా రాబోతున్న దినాల్లో పనిచేయగల వాతావరణాన్ని భారతదేశ ప్రభుత్వమే కల్పించాలి. ఇదే మీడియా వర్గాల ప్రజాస్వామ్యంలో నమ్మకమున్న ప్రతి ఒక్కరి అభిలాష. सच दिखाने की हिम्मत कर पाएगा। ये मेरा घर नहीं तोड़ा, ये मेरी कमर तोड़ी है। मेरी फैमिली सड़कों पे है, आज बिना छत के है, और मेरे को नहीं लगता इससे बुरा वक्त किसी और के साथ हो सकता है। और इन्होंने उन लोगों को खुश करने के लिए जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो चिट्टे के केस में अंदर हैं, उन लोगों को खुश करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। टारगेट किया गया है मेरे को। यहाँ पे मेरी फैमिली अभी मतलब आप देख सकते हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। यहाँ पे जुल्म अगर कुछ है तो इससे बढ़ के कोई जुल्म नहीं हो सकता है। बाकी इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ अभी। मेरी हिम्मत नहीं। आप लाइव करने लगे, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ कि आपका लाइव सिर्फ कुछ सेकंड के बाद कट हुआ? आप लाइव की बात करते हैं, मेरे को एक फोन कॉल तक नहीं करने दिया। एज अ जर्नलिस्ट जो मेरा काम था, भाई आपको तोड़ना तोड़ो, कोई बात नहीं। एज अ जर्नलिस्ट जो मेरा जानकारी देने का काम है वो तो मेरे को करने दो। मेरे मतलब यहाँ पे देखो, मेरे को पूरा यहाँ पे छिला गया है। क्या बताऊँ मैं, फोन मतलब एक कॉल करना, मैंने कहा मेरे को पापा को कॉल करना है, पापा कम से कम घर पे जाएं। हम 3 लड़के थे यहाँ पे, तीनों को थाने लेके बिठा दिया। अभी आया हूँ मैं वहां से, 5 मिनट हुए आए हुए। मतलब इतनी अंधेर नगरी, बात करने का किसी को मौका ना दे। आप अचानक से सुबह आ जाते हो, भाई इतना क्या है? 40 साल हो गया मैं यहाँ पे रहते हुए, आज तक कहाँ सोए हुए थे आप सारे?
इनकी इनकी जो भी ये जेडीए शेडीए जो भी है ना, इनकी दादागिरी चलती है सिर्फ गरीबों पे। मार्बल मार्केट में ना हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप जेडीए जो है अपनी जगह खाली करवाइए, वहां पे इनकी दादागिरी ऐसी वाली नहीं चलेगी, वहां पे बिल्डोज कर दे। यहाँ पे आपने उस लाइव में छोटा सा देखा होगा कितनी संख्या में, मेरे को लगता है 700-800 बंदा होगा सिक्योरिटी फोर्सेस का, 4 जेसीबी। भाई इतना कौन सा मैं कोई डॉन हूँ यहाँ पे? मेरे को एक फोन कॉल तक नहीं करने दिया गया, अपनी बात किसी को बताने तक नहीं दिया गया कि यार मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो वहां पे आप दुनिया जान के अभी भी इंक्रोचमेंट हो रही है। ये तो मिल करके करवाते हैं, पहले ये लेंटर तक पहुंचाते हैं, लेंटर जब पढ़ने वाला होता है तब लोगों को जाते हैं, वहां से पैसा करते हैं। अब बताओ मेरे को कहाँ पे नहीं है जेडी, कहाँ पे कब्जे नहीं है, वहां पे क्यों नहीं आपकी? जब ये सुबह मशीनें लेकर आए, इससे पहले आपको बताया गया था कि हम आपका घर तोड़ने वाले हैं, या अचानक से सुबह आकर मेरे को किसी ने कुछ नहीं बताया है, सुबह आए एकदम से तोड़ दिया, एकदम से तोड़ दिया। इतनी कौन सी आग लगी है? अगले मतलब फैमिली बस रही है पिछले 40 सालों से, आप एकदम से आ रहे हो, एकदम से तोड़ रहे हो। किसी एक बंदे को खुश करने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टारगेट किया गया है। ये कहाँ कहाँ पे ड्राइव चली है आज के दिन में, और कहीं पे आपने चलाई ड्राइव, कहीं पे सुनी आपने ड्राइव चली है? एक अरफाज रैंक का घर इलीगल है, एक अरफाज घर के घर मतलब उस पर ड्राइव चलेगी, या उसकी फैमिली के किसी मेंबर का अगर घर है तो उस पे ड्राइव चलेगी? ये सरासर टारगेट किया गया है। और ये आम लोगों के लिए भी, जर्नलिस्टों के लिए भी, सोशल एक्टिविस्टों के लिए भी एक सबक सिखाया गया है। ये मेरे जरिए उन सब लोगों को एक सबक सिखाया गया है जो नेक नियति से अपना काम करना चाहते हैं। चापलूसियां करो, इनके पैरों में पड़े रहो, आपको कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर आप सच दिखाते हो आपके साथ यही कुछ होगा। इंसाफ की उम्मीद है भी आपको, इंसाफ मिलेगा आपको? भैया इंसाफ मिलेगा मेरे को 10 साल के बाद। जाऊंगा मैं कहीं कोर्ट में, लड़ूंगा मैं केस, मेरा मकान टूट गया ना, आज कहाँ जाऊं मैं? आज कौन देगा मेरे को इंसाफ? आज मैं अपनी फैमिली को कहाँ लेके जाऊं? जी आप क्या कहेंगे, आज जो एकता सामने आई है? ये आप देख सकते हैं, ये प्यार है। मतलब कोई ये नहीं कि हमने इनको कोई बुला करके यहाँ पे लाया है, या मैं कोई नेता हूँ तो मैं इनको सिखाऊंगा। ये इनका प्यार है, जो ये छलका है इनकी आंखों में। और किस तरह से ये मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर के मतलब मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारा मतलब, ये तो इनका बड़ापन है, ये हमदर्दी है। और एक अरफाज डैंग का घर तोड़ने से, एक अरफाज डैंग का घर का दरवाज़ा बंद होने से मेरे लिए लाखों घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। मेरे को इससे बड़ा और क्या चाहिए था? उन लोगों ने, उन ताकतों ने सोचा था अरफाज डैंग टूटेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना हौसला मिला है, इतना मतलब लोगों का प्यार मिला है। हर जगह से मेरे को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, इतने हज़ारों लोग मेरे को यहाँ कल से अभी तक मिल चुके हैं। तो बहुत प्यार मिल रहा है और मेरा हौसला और बुलंद हुआ है, ना कि टूटा है। और मैं हमेशा ही सच की आवाज़ बनता रहा हूँ, बनता रहूँगा, आगे भी इसी तरह से काम करूँगा। इससे दुगने मतलब जोश से काम करूँगा। मेरा मतलब ये ख़त्म नहीं होगा। कोई सोचेगा कि घर तोड़ दिया तो इसकी हिम्मत टूटेगी, हिम्मत अरफाज डैंग की कोई तोड़ नहीं सकता है। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट, मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी, मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ, और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। मैं बोलता हूँ कि बीजेपी वालों, तुम सालों मर जाओ, तुम्हें कीड़े पड़े कुत्तों, मर जाओ तुम। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालो, मेरा भी गिरा दो, मर जाओ, मर जाओ, तुम मर जाओ सालो, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मत सोचना जब बेघर। हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। और मैं अपने भाई को, ये बहुत बड़ा तमाचा है तुम्हारे मुंह के ऊपर। साल सामने आई है और आप
देख सकते हैं कि वो अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा जो है वो उन्हें देना चाहते हैं कि वो वहाँ पे अपना आशियाना बना सकें, जो कि कल का पूरा उजड़ परिवार चुका यहाँ है। पे आया है, बेटी के और वो हाथों से जो है वो अपने ज़मीन बेटी का के टुकड़ा हाथों जो से है जो है वो वो अरसाज ज़मीन का डैम को जो टुकड़ा है वो देना चाहते हैं। यहाँ पे देना चाहते हैं और यहाँ पे मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को जो अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लाट तोड़े ना मैं 5 दूंगा, सालों 5 तोड़ो मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है, और लानत है तुम्हारे ऊपर, ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता। एक मिनट, मेरी कश्मीर में जो मेरा फयाज दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है फयाज ऋषि, अगर तुझे आप मुझे देख रहे होंगे, आयत मेरी बेटी है, वो इस टाइम एडवोकेट है, और एक माना जाना तो मेरा दोस्त है, इतना बड़ा ठेकेदार है। तुमने मुझे रात को भी कहा ना, तू जा मेरे भाई, मैं तेरे साथ हूँ। अब घर बनाना है, अब तो सुन लेना। पागल, मैं हंस भी रहा हूँ और रो भी रहा हूँ। हंस इसलिए रहा हूँ कि मुझे पता है मेरे पीछे सपोर्ट कश्मीर तक है, बाहर तक भी है। लेकिन दोस्त, तू एक बहुत अच्छा इंसान है। ऋषि भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, घर बनाना है जबरदस्त तरीके से, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पर्सनली आप खुद देख सकते हो कि टेंशन नहीं लेनी। मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ हैं, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमारे जम्मू कश्मीर में। इतनी एकता तो है जम्मू में। कल से हजारों लोगों ने हमें सपोर्ट किया और मदद करने की कोशिश। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे आप जैसे हस्तियाँ आती हैं हमारे पास, मेरे बेटे की सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत धन मिल रहा है हमें, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और यही मैं अपने बेटे को सीख देता हूँ, लोगों के काम आओ। लेकिन सच्चाई का ज़माना नहीं है इस वक्त, सच का साथ कम देने वाले और जो बेईमान लोग हैं, जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो 2 नंबर के धंधे करने वाले, जो 50-50 कनाल के प्लाट हड़प करने वाले, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। 2 मरले ये आपके सामने है प्रॉपर्टी। अगर ये वैसा मेरा बेटा होता है या वैसा लुटेरा होता है, इसका भी कोई महल होता बहुत बड़ा आज तक 8-10 सालों में। लेकिन मैंने इसको यही नसीहत की, बेटा अच्छे काम करते करते हमारी जान अगर जनता के पीछे और अपने समाज के पीछे लग जाए, परवाह मत करना। मैं ये समझूंगा अपने हिंदुस्तान के आईन के लिए शहीद हो गया मेरा बेटा, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जनता के लिए, बस जम्मू के लोगों का मैं आभार हूँ, सब पूरी जनता का, जो मेरे इस वक्त बेटे की सपोर्ट में है और सपोर्ट करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ मीडिया का भी, हिंदू का भी, सिख का भी, ईसाई का भी, अपनी बलादरी का। मैं इसी में कल से दग दग मेरी जवानी आ रही है और मेरी ज़िंदगी जो है मतलब शायद इस खुशी से बढ़ेगी, जो हमें समाज और मीडिया और अच्छे अच्छे लोग जो है सच्चाई पे चलने वाले लोग हैं, वो मेरे बेटे का इस वक्त साथ दे रहे हैं। मुझे इससे ज़्यादा कोई धन दौलत नहीं चाहिए, और मुझे जनता की, मेरे बच्चों पे दुआ होगी, इनको कुछ नहीं होगा, कोई पता नहीं हिला सकता, ना कोई ऑफिसर, ना कोई जेडीए। ये मैं शरेआम कहता हूँ, सच्चाई के साथ ऊपर वाला भी और जनता भी है, झूठ के साथ शैतान है। और जो ऑफिसर ऐसा जुल्म करते, 2-2, 3-3 मरले का प्लाट वाले को अगर बेघर कर रहे हैं, उनको जब ऊपर वाले का भूचाल आएगा, उनके बच्चे भी रोड में होंगे। ये मुझे पूरी उम्मीद है, जिसने हमें पैदा किया उसकी जात पे, और हिंदू मुस्लिम धर्म और जम्मू की जो एकता है, मैं इसको धन्यवाद देता हूँ। ये कायम रहे जब तक कयामत आएगी, या मतलब जब तक ये दुनिया की ज़िंदगी और ऊपर वाले ने ये धरती और चांद सूरज बनाया, तब तक ये कायम रहे। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। धन्यवाद आपका, मीडिया का, हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का। मैंने कल से देखा कि मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट डोडा का या डिस्ट्रिक्ट रामबन का रहने वाला था, लेकिन पूरा जम्मू कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सब जम्मू डिस्ट्रिक्ट के हमारे बहन भाई हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, ईसाई है, सब भाई। मतलब मुझे लगा कि आज हमारे भाई हैं, हम इंसान हैं, इंसान की पहचान जम्मू में है, ये ना के और किसी जगह होगी। मैं
जो सुनते हम देखते आ रहे हैं। लेकिन जम्मू के लोग मैंने शुरू से देखा, मुझे भी 40 साल हो गए जम्मू में रहते हो, और ये जम्मू ये जो 3 मरले मतलब इस वक्त सत्यानाश हुआ, ये बड़ी मेहनत से बना था, बड़ी मेहनत करके बनाया था। और अगर हमारे बच्चे जो बेइंसाफ़ी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आके अपने किताबें अपना घर ढूंढने लगे, पापा का है मम्मी का, उनको ताला बंद करके उधर उसमें होम में रखा हुआ था, अनाथ आश्रम के होम में लेडीज़ लोगों को, जेंट्स कोई नहीं था। जेंट्स ये 3 बच्चे थे, पोते 2 और मेरा बेटा अरफाज अहमद ढिंग। इनको पुलिस ने फौरन पहले सबसे पहले फ़ोन तोड़े, मीडिया का काम करते हैं, फ़ोन तोड़े और हिरासमेंट करके पुलिस चौकी में बिठा दिया। घर में यहाँ ऊपर वाला था, यहाँ के कुछ चंद लोग थे, लेकिन पुलिस ने इतना नाका लगाया हुआ था। मैंने हर जगह देखी जम्मू में, तब से लेके अभी तक बहुत स्ट्राइक चली, बड़े मतलब जेडी आई, पुलिस आई, लेकिन जितनी फोर्स 3 मरले के लिए मेरी मीडिया से यही अपील है। अब आप कहेंगे कि फैसला क्या किससे डिमांड रखते हैं आप? मेरी आपसे ही डिमांड है कि फैसला करने वाली मीडिया है, और मेरी भाईचारा जो जनता है वो जो फैसला देगी वही हमें मंजूर होगा कि ये क्यों गिराया गया, इसका मतलब कसूर क्या था, जुर्म क्या था। जो जुर्म वाले हैं वो छूट के बाहर तीसरे दिन आ जाते हैं, जो चिट्टा बेचते हैं वो चौथे दिन जमानत से बाहर आ जाते हैं। मतलब इतनी क्या दुश्मनी? यही दुश्मनी है कि भाई मतलब जो गलत करता, हमारे समाज को ख़राब करता, हमारे यूथ को ख़राब कर रहा है, हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहा है, जो कि मतलब हिंदुस्तान की आइन को बनाए रखने वाले उनके दिमागों को बर्बाद करते हैं। क्या मतलब उनका साथ देगी बड़े ऑफिसर लोग या ये बैरोक्रेट लोग, जो कि मतलब जम्मू कश्मीर की पूरी सरकारी लैंड जो है वो बेच डाली इन लोगों ने मिली जुली भगत से। क्या आज तक जब ये घर बनाया, झुग्गी बनाते 10 साल लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, घर बनाते बनाते 40 साल लग गए मुझे, एक एक ईंट जोड़ते जोड़ते और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। तो क्या ये रातों रात बना? उस वक्त जेडीए नहीं थी, पुलिस नहीं थी, सरकार नहीं थी। उस वक्त क्या सरकार को नहीं लगा, जेडीए को नहीं लगा कि स्टेट लैंड है? उस वक्त माल जो चढ़ता है, उनके जो छोटे मुलाजिम हैं उनकी प्रॉपर्टियाँ चेक की जाए कि मतलब अगर उनकी तनख्वाह 1500 थी, डेली वेजर था, उसके घर करोड़ों में इस वक्त केस हैं। तो मुझे किसी से शिकायत नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ उस वक्त भी जेडीए थी। मैं जेडीए ने जन्म बाद में लिया, मैं पहले उससे आया हूँ कई साल, और उसके बाद अगर जेडीए यहाँ थी तो मतलब अरफाज ढिंग का घर क्यों नहीं? इसने तो जन्म लिया है इस घर में। अभी तो इसने मतलब कोई मतलब वो नहीं किया है। एक जगह दूसरी जगह इसने अपने लेके अपनी प्रॉपर्टी खरीदी, वो भी गिरा दिया, घर वो भी बर्बादी होगी, 20-30 लाख का नुकसान किया। इतना क्या है मतलब जुल्म क्यों होता है गरीबों पे? मेरी यही दरख्वास्त है और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से दरख्वास्त है कि जब तक ना आप लोग एकता करेंगे। आज मेरे इरफाज का नंबर आया, कल दूसरे इरफाज मैम आपका भी नंबर आएगा। अगर जैसे मीडिया वालों को दबाने की अगर आप सच्ची बात सामने ला तो आपको मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, इन भाई साहब ने बोला ना जो मतलब इन पे कोई केस लगा देंगे, नहीं जी ये हिंदू होते हुए या फलाना मुस्लिम होते हुए इसने जी ऐसे किया, उधर साथ दिया, उधर फोन पकड़ा, उधर ये किया, अंदर ठोक देंगे, कोई पूछता ही नहीं है। तो शायद हम पर भी ऐसा हो, लेकिन करें कोई बात नहीं, हम सच्चाई से पीछे तो आपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और हम ना भैया को ये वाला जो घर टूटा है ये हम वापस नहीं ला सकते, पर हाँ इतना है कि मेरे जो पापा ने इतना अच्छा डिसीजन लिया, 5 मरला जो ज़मीन है वो भैया के नाम कर दिया और इनके फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ इस वक्त। और भैया को हमें यही भैया के हमेशा साथ ही रहेंगे और इनके फैमिली मेंबर्स के साथ हैं हम। दिखाइए, नहीं पकड़ पाओगे उनको क्योंकि आपके नीचे से खटिया टाइट हो जाएगी। मुझे बताओ, ये जो माँ बाप है, ये जो गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे? ये देखो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ तो होता ना उनके पास पैसा होता तो चलो कहीं आगे पीछे कहीं पे रेंट पे चले जाते, कैसे कहीं पे रह लेते। अब कहाँ जाएंगे बताओ?
शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप ऐसे लोगों को, ऐसे बंदे को आपने टारगेट किया है जो रिपोर्टिंग ऑनेस्ट की है उसने। एक गरीब है बेचारा, चाहता तो पैसे कमा सकता था, एक टूटी फूटी बाइक पे चलता है वो। इसका घर देख लो, दीवारें भी अभी कच्ची है, उसको आपने टारगेट किया है। और मेरे को रोना आ रहा है क्योंकि उनके माँ बाप, एक बूढ़ी माता है, शायद उसकी उम्र 90 साल से ऊपर हो गई है। ये जिसने भी किया है, ये आप ही बना के दोगे इनको। जो प्रोसेस था उसको फॉलो किया गया जब इस मकान को गिराया गया। ये मकान एक दिन में नहीं बना, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मेरी उमर साहब आपसे ये भी गुजारिश है कि रुपेश कुमार जी से जरूर पूछिएगा कि जो एक्सेल्शियर लेन में जो एलजी महोदय हैं, कविंदर गुप्ता सन ऑफ श्री बिंद्रावन गुप्ता और इंदिरा कॉलोनी जानीपुर, क्या उनका मकान उनकी जाती जमीन पे है? और वो जो गिफ्ट डीड है उसमें जो जमीन मेंशन है वो जमीन एक्चुअल में बीएसएफ कैंपस पलोड़ा में है, लेकिन दिखाई गई है एक्सेल्शियर लेन में। क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या जम्मू कश्मीर ऐसे चलेगा? क्या ये नया जम्मू कश्मीर है? आज मुझे ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस हो। आज कोई बड़ी मछली पकड़ी होती मुझे खुशी हो, लेकिन मेरी दरख्वास्त है आज, क्योंकि आज फोकस बना है एनक्रोचमेंट। मैं फिर कहूंगा, एनक्रोचमेंट इज एन एनक्रोचमेंट। मैं बतौर वकील कैसे जस्टिफाई करूं एनक्रोचमेंट को? लेकिन एक आंख से तो देखिए, आप डिसाइड कर रहे हैं कि किसको पकड़ना है। जो हाई कोर्ट के खंडपीठ ने जो अपने फैसले में लिखा है, मैडम गीता मित्तल ने और राजेश बिंदल ने अक्टूबर 2020 में खसरा नंबर 781 मेंशन्ड है, मार्बल लेन, दिल्ली, लोगों के नाम है। और ये मैं आपको बता दूं, मैडम सुषमा चौहान डीसी जम्मू थी। और इस जमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिमार्केशन कमीशन कायम किया गया हाईकोर्ट की जजमेंट के मुताबिक। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर घनीश्याम सिंह जी, एक बहुत ही नहायत ही ईमानदार ऑफिसर, वो चेयरमैन बनाए गए डिमार्केशन कमीशन। डिमार्केशन कमीशन की रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई। उन्होंने तमाम जो एनक्रोचर्स हैं, ये जो वीवीआईपी एनक्रोचर्स, उन्होंने लिखा कि कौन कौन सा बैंकेट हॉल और किसके कब्जे में, लेकिन उसको रिपोर्ट को कहां रखा गया है ये बताना पड़ेगा रुपेश कुमार जी आपको भी। अगर आप पीला पंजा चला रहे हैं तो रुपेश कुमार जी बताइए घनीश्याम जी की रिपोर्ट कहां है। और जो हाई कोर्ट ने कहा है कि इट इज ए शट आई केस, ये रेवेन्यू, पुलिस और जेडीए इस केस में मिले हुए हैं, वहां तो कोई एक्शन नहीं होता। वहां क्यों नहीं एक्शन होता? ये पूरे जम्मू कश्मीर को ये सवाल करने चाहिए। और मेरी उमर साहब आपसे गुजारिश है, प्लीज खसरा नंबर 781 विलेज दिल्ली की फाइल मंगवाइए। और प्लीज मेरी कंप्लेंट एक्सेल्शियर लेन की, जो एक वीवीआईपी साहब का मैंने नाम लिया, जिनको कोठी खाली कराने के लिए हमें इतना तरद्दुद करना पड़ा सरकारी, उनसे मेरी गुजारिश है, जम्मू कश्मीर में रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश कीजिए। मुझे आज इतनी बात करनी है। पूरे मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक चीज है, लेकिन ये जो एजेंट्स इस किस्म का काम कर रहे हैं, इन्हें सोचना चाहिए, कल को इन्हें जवाब देना पड़ेगा। वक्त आ जाएगा, वक्त एक जैसा नहीं रहता, वक्त आ जाएगा, इनको जवाब देना पड़ेगा और बहुत बुरी तरह से। और इस चीज का मैं साफ बता दूं आपको कि एक जात है जो देखती है, इनकी औलाद को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा, इनकी आने वाली जनरेशन को इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो गरीब और मजलूम लोगों पे जो जुल्म करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको ना ही दुनिया बख्शेगी और ना ही रब ताला जो वो बाहे गुरु ऊपर बैठा है वो बख्शेगी। मुझे इतना ही कहना है, ज्यादा क्या यहाँ हर कोई देखता है। आज बच्चा बच्चा ये चीजें समझ रहा है कि हो क्या रहा है, ये नहीं है। कोई इदारा इससे अछूता नहीं रहा है इन चीजों से, चाहे वो अदालतें हैं, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, पुलिस है, जो भी है, हर कोई जानता है क्या हो रहा है। लेकिन जो चुप्पी साधे हुए हैं, जिन लोगों को चुप्पी नहीं साधनी चाहिए, बड़े बड़े आप देखिए, ये जो हुकूमत है, मौजूदा हुकूमत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की यहाँ हुकूमत बनी हुई है, ये क्या है से मालूम नहीं है क्या हो रहा है, से भी मालूम है, लेकिन ये भी सहमी हुई है, डरी हुई है। चीफ मिनिस्टर की कोई वक़्त नहीं है, किसी मिनिस्टर की कोई वक़्त नहीं है इस वक्त। ये आप समझिए, ये बातें, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। और खुल के बात नहीं कर पाता है हमारा चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर। आप देखिए, कभी कोई लीडर खुल के बात नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल लीडर रहे हैं, आपने जम्मू कश्मीर के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बात की है। फारूक अब्दुल्ला साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, आप लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे बात की है।
आज आप अपने मासूम लोगों के लिए बात नहीं कर रहे, बड़े अफसोस की बात है। इस वक्त हम मौजूद हैं नरवाल और हम देखते हैं वायरल है इस वक्त जो अरफाज डैंग के घर को तोड़ा गया है और इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ लीगल एक्सपर्टीज हैं एडवोकेट साहब। सर, किस तरह देखते हैं इस सिलेक्टिव डिमोलिशन ड्राइव को और जिस तरह से यहाँ कम्युनल टेंशन जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ चुकी है और यहाँ जो एक्सपोज करते हैं लाइज ऑफ द स्टेट, उनको जो है वो ये तोहफा दिया जाता है एक सिलेक्टिव डिमोलिशन ड्राइव करके विदाउट सर्विंग द नोटिस। ये बहुत बड़ा जुर्म है। एक परिवार इसके अंदर रह रहा था और कई सालों से 40 साल से इसके अंदर, इस मकान के अंदर एक फैमिली रह रही थी। अरफाज साहब के फादर साहब ने मकान बनाया था पैसा जोड़ के, और 2-3 कमरे का मकान, छोटी सी लॉबी 2-2.5 मरले के अंदर, और एडमिनिस्ट्रेशन एक पुलिस बल लेके सीआरपीएफ और पुलिस का इस्तेमाल करके पूरी तरह से पावर्स का मिसयूज करके 2 मरले में जो मकान बना था उसको गिराती है। और एक बुजुर्ग माँ हमारी जिसकी उम्र 90 साल है, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनकी बच्चे, उनको बाहर जो है सर से छत छीन ली जाती है, मकान को जमींदोज कर दिया जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा निंदनीय कदम है। ये डिमोलिशन बड़ी निंदनीय है। अरफाज साहब कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई बहुत बड़े ड्रग पेडलर नहीं है, कोई लैंड ग्रैबर नहीं है, एक वेल नोन जर्नलिस्ट है जो अवाम के लिए सच्चाई के लिए काम करते हैं, और उनको जो सच्चाई का सिला है वो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू ने दिया है। जेडीए डिपार्टमेंट ने ये डिमोलिशन जो है वो चलाई है, और सिर्फ सिलेक्टेड एक ही घर ऊपर से लेके नीचे तक जो है एरिया उसमें तोड़ा गया है। वो अरफाज साहब का जो घर है वही तोड़ा गया है। सर, हम आए दिनों देखते हैं कि यहाँ सिलेक्टिव ड्राइव चलता है, पॉलिटिकल इशारे पे जो है लॉ इन्फोर्समेंट चलती है और डिपार्टमेंट्स चलते हैं। क्या इससे एक रूल ऑफ लॉ, जो एलजी साहब यहाँ आए थे और ये कहा करके हम जम्मू कश्मीर के अंदर रूल ऑफ लॉ स्थापित करेंगे, यहाँ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाएंगे, तो हम जेडीए की अगर बात करें, लैंड की जो इलीगल ग्रैबिंग है, मार्बल मार्केट से लेकर एक्शर लाइन जो है पीछे, वहाँ सब इंक्रोचमेंट और कॉलोनीज बनी हुई है, वहाँ क्यों एक्शन नहीं होता है? जम्मू और कश्मीर में स्टेट लैंड की तादाद बहुत बड़ी है। कई लाख कनाल जो स्टेट लैंड है वो यहाँ पर है, जेडीए के अंडर है, उनको नोटिस भी जाते हैं। जिसके पास 100 कनाल है, जो अफसरशाही है वो बहुत गंदी है, करप्ट है। जो पैसे देते हैं उनके नोटिस आए हो या ना आए हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बंदा चापलूसी नहीं करेगा, सच्चाई पे चलेगा, उसके साथ ये लोग ये वाला व्यवहार करते हैं, सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अरफाज साहब सच्चाई के लिए लड़ रहे थे, वहां पर महराज मलिक को अंदर जो है पीएसए लगा के कर दिया गया था सच्चाई पे। सोनक वांगचुक, महराज मलिक, और तीसरा ये अरफाज अहमद डैंग जो है, इस पे जो कार्रवाई हुई है ये निंदनीय है। इनको एलजी साहब को पता होना चाहिए कि आपके अफसर जो हैं वो किस तरह से सिलेक्टेड लोगों को टारगेट कर रहे हैं और करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ जो बड़े बड़े ड्रग पेडलर हैं, जो चिट्टे का काम करते हैं, जो लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं, उनकी जमीनें जो है वो उसी तरह है। लेकिन 2 या 2.5 मरले में एक फैमिली जो है अंदर, बहनें, माएँ, बेटियां, बहुएं, उनको जो है एक फैमिली को, मकान को जमींदोज करके बेघर कर दिया जाता है। तो आपके शासन में ये हो रहा है जम्मू में, तो ये बड़ा शर्मनाक है। लिहाजा इन अफसरों के ऊपर जो है वो एक कार्रवाई मैं मांग करता हूं एलजी साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब जिनके अंडर ये जेडीए डिपार्टमेंट है, उनसे मांग करता हूं कि जो भी इसमें शामिल रहे इनके ऊपर एक कार्रवाई की जाए, इसके लिए इंक्वायरी बिठाई जाए कि किस बिना पर इन्होंने जो है इनको बेघर किया है। और जो अरफाज साहब है, इनको मकान जो है वो कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इनके सर पे छत नहीं है। इनकी फैमिली जो है आने वाले समय में जो है बहुत सर्दी और बढ़ेगी, तो इनको जो है वो मकान जो है मुहैया कराए एलजी साहब, उमर साहब, और इनको जो है इसका मुआवजा दे जो इनका नुकसान हुआ, और उन अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे ताकि वो आइंदा जो है सच्चे लोगों के खिलाफ इस तरह का टेरर जो है वो ना फैला सके। एडवोकेट साहब, कल ही यहाँ पे जो है वो संविधान दिवस मनाया गया, शपथ ली गई सब डिपार्टमेंट की तरफ से, और एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट जुडिशरी को अपहेल्ड करने की बात की गई, और एडमिनिस्ट्रेशन भी अनबायस्ड तरीके से, जैसे इक्वालिटी बिफोर लॉ है, जस्टिस सबके लिए है। क्या उसकी ये आज शुरुआत की इन्होंने कल वो शपथ लेकर के हम जो है सिलेक्टेड एक गरीब बंदे को टारगेट करके घर से बेघर करें पूरे परिवार? 75th कॉन्स्टिट्यूशनल डे था हिंदुस्तान में,
तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किताबों में है, फील्ड पे उसको लागू जो करता है उसके साथ ये होता है। कोई ईमानदार अफसर होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, उसको खुड्डा लाइन जनाब फेंक दिया जाएगा, ईमानदार होगा कि ये करप्शन नहीं कर रहा है, क्योंकि करप्शन सिस्टम है यहाँ पर। कॉन्स्टिट्यूशन का 75वां सालगिरह हमने कल मनाई। कॉन्स्टिट्यूशन किताबों में कैद है, लेकिन फील्ड में जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा वो मुजरिम है इनके हिसाब से। जो ये करप्ट लोग, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग हैं, आपने देखा पिछले दिनों जो है जस्टिस जो गवाई साहब है सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर जूते से हमला किया गया। एक शब्द जो है मौके की गवर्नमेंट ने जो है उनके खिलाफ नहीं बोला, जिन्होंने जूता फेंका। तो ये हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया जाना चाहिए। बोलने से, मनाने से कुछ नहीं होता। 75 सालों से हिंदुस्तान में क्या हो रहा है बच्चा बच्चा जानता है। लिहाजा इस चीज को खत्म करना होगा। नया हिंदुस्तान, नई सोच और नई शुरुआत। और लिहाजा इस मामले में जो है अरफाज डैंग साहब को एक मकान दिया जाए, और जो इसका नुकसान हुआ है वो दिया जाए, और जो इसके बेघर हुए हैं माँ बहनें बच्चे बहुएं, उनको कहीं ना कहीं जो है सर पे छत दी जानी चाहिए। बच्चे जो है वो बीमार हो जाएंगे, ठंड जो है शदीद बढ़ने वाली है। यही मैं गवर्नर साहब से कहना चाहूँगा। थैंक यू। वो देने नहीं है। हमारे भाई के साथ जुल्म हुआ है, एक ऐसा जुल्म हुआ है जिसकी भरपाई नहीं है, उसकी बात करने आए हैं। और आप लोगों से सिर्फ हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है, सारे मीडिया वालों से, और आपके थ्रू जो बाकी मीडिया वाले सुने उनके साथ भी, आके आप लोग सारे साथ खड़े हो जाएं। आप जब तक बात बुलंद नहीं करेंगे, ये इस चीज का हल नहीं निकलेगा। आज बुलडोजर का मुंह इस तरफ था, कल आप लोगों के घर की तरफ भी हो सकता है। साफ बात है कि इस आदमी के साथ जो है वो नाजायज हुआ है। सिर्फ यही 3 मरले का टोटा जो था ये गलत नहीं था। बाकी भी हम ये नहीं कहते कि उनके ऊपर पर्टिकुलर एक आदमी के ऊपर एक्शन होने का मतलब आप समझ सकते हो क्या है, ठीक है। तो मेरी बाकी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका पहले एक मकान जो है, एक कोई, मैं कहने से डरता नहीं ना, मैं उन लोगों को जानता हूं, वो कोई हिस्ट्री शीटर हैं, बल्कि उनके पुलिस थानों में फोटो भी लगे हुए हैं। हमने उसके ऊपर भी बोला, पहले वो मकान गिरा, उसके ऊपर पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक जर्नलिस्ट के साथ अगर ऐसा है तो आप सोच सकते हो कि एक आम आदमी के साथ क्या होगा। एक जर्नलिस्ट ये वहां बैठ के रोया कि मेरा मकान गिरा दिया, मैं एक दिन के लिए रामबन गया अपने माँ बाप को देखने, पीछे से मेरा मकान गिरा दिया। वो मकान गिरा, अगला भाव छोड़ के अपने बाप के घर आया कि चलो जी मैं अपने बाप के घर आया। तो कहाँ जाएगा? आप लोग जानते हो कितनी कमाई है आप लोगों को, आप लोगों की सैलरियां कितनी है और आप लोगों को कमाई कितनी, आप जानते हो। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने पहले भी बोला कि मैंने अरफाज को 50 दफा बोला कि अरफाज यार कोई ना कोई काम शाम कर ले, ऊपर वाले की दया है, चलो हम काम काज अच्छा करते हैं कोई। इसने हमेशा मुझे क्या बोला कि मेरी सर जो ना जरूरतें बड़ी कम है, मेरी जरूरतें पूरी हो जाती हैं इसी में, मुझे कोई वो नहीं है, मुझे खाली यही करना आता है, मुझे और कुछ आता ही नहीं। तो अगर आज इसके साथ हुआ ना तो कल किसी और के साथ हो सकता है। पहले आपकी मीडिया की, मैंने पहले ही बोला, मीडिया की एक साथी है रश्मि शर्मा, उन्होंने कल बड़ा अच्छा डाला कि जब ये मकान बना तब उस टाइम के जो लोग थे, जो तहसीलदार था, जेडीए वाले, वो कहाँ मरे हुए थे। आपको बिजली का कनेक्शन कैसे मिला इलीगल जगह पे, आपको पानी का कनेक्शन कैसे मिला। और देखिए अब उन्होंने गिरा दिया है, अब हम कर कुछ नहीं सकते। अब हम सीधी बात है कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, पर लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, मैं सीधी तौर पे कह रहा हूँ, इस आदमी के पास पैसा नहीं है, हम लोग इतनी हेल्प करें सारे मिलके कि कल को ये आशियाना उससे अच्छा खड़ा हो। जिन्होंने तोड़ा उनको पता चले कि हमने जो गिराया था उन्होंने अच्छा बना के खड़ा किया। बाकी आप लोगों से हाथ जोड़ के दोबारा मैं यही विनती करता हूँ, आप लोग साथ नहीं छोड़ना। ये नहीं करना कि 2 दिन आप लोग जहां आओ मीडिया बाइट लो, मीडिया जब ताज़ा मामला है तो वो आप लोगों को साथ देना पड़ेगा। हम लोग देंगे, हम लोग भी हो सकता है, देखो मसरूफियत में आदमी पीछे हो जाता है। आज जितने लोग जहां बातें कर रहे हैं कल उससे कम होंगे, परसों उससे कम होंगे। मैं बड़ी कोरी बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आप लोगों का जो ना, आप लोगों का साथ काम नहीं होना चाहिए जब तक इसको इंसाफ नहीं मिलता। जय हिंद, जय भारत। आशियाने तोड़न तो पहला कि भाई परमात्मा करे, मैं रब अगे हथ चकना कि रब्बा इन्हां दे घर तोड़, चाहे बिजली सट के तोड़ इन्हां नूं पता लगे कि किसी दे घर तोड़न दा की खमियाजा होता है। इन लोगों ने मतलब आंतक फैलाया दा है, कल नूं कोई आवाज़ ना चके तुहाडे खिलाफ। मैं ईमानदारी नाल कर रहा, साडा दौरा सी पूरा
ਪੁੰਛ ਰਜੌਰੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦਾ। ਔਰ ਅਰਫਾਜ਼ ਤੂੰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਇਹ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਦੀਵਾरें लगी हुई देखो, ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपना नंबर शेयर किया था, खुल के जान करो। इन्हों 2 रुपए बाद ऐसे ही दबाने की कोशिश की जाएगी। ये एक दबाने का तरीका चुना है उन लोगों ने। ये एक उन्होंने साजिश रची है कि आगे से हमारे खिलाफ आवाज ना कोई उठाए। लेकिन आप लोग भी देखो, जब तक आप सच की आवाज उठाओगे, सच के साथ चलोगे, तो पब्लिक भी साथ आएगी। आज कुलदीप शर्मा उसकी बेटी क्यों आए, मजबूर करता है वो आदमी ऊपर बैठा, जो ऊपर बैठा ना भगवान नीली छतरी वाला, वो मजबूर करता है। वो दिलों के भेद बेहतर जानता है, वो दिलों को फेरता है। उसने मजबूर किया कि जाओ जाके मेरे बंदे की मदद करो, करवाई ना उसने। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, घर भी बनेगा और बेहतर घर बनेगा, खूबसूरत घर बनेगा। हम खुद चंदा इकट्ठा करेंगे। हमें पता है कि कैसे घर बनते हैं। आप जब शुरू करोगे आपको पता चलेगा कितनी मदद करेंगे हम। और ये कोई मीडिया के सामने नहीं है कि हम वैसे बोल रहे हैं। हम जाने जाते हैं कि जहां हम खड़े होते हैं बड़ी मजबूती के साथ खड़े होते हैं। और हम वादा कर रहे हैं इतने लोगों के सामने, अरफाज गैंग का एक खूबसूरत घर बनेगा। और नक्शा पास करके बनाएंगे ताकि दोबारा किसी में जुर्रत ना हो कि कोई ऐसी बात करने आए। लेकिन ये जो जगह है, ये मैं कहूँगा, जो हमारे उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं आज के मौके के, आप एक जर्नलिस्ट की कॉलोनी डिक्लेयर करो और जर्नलिस्टों को 5-5 मरले प्लाट दो ताकि कोई जर्नलिस्ट अपने घर से बेघर ना हो। ये कैमरे लिखे, ये आधे लोगों ने कैमरे इसलिए उठा, खर्चा चलाने के लिए, वीडियो चल जाती है, कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे कर करके ये घर चला रहे हैं। मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ी बहुत ऐड मिल जाती है तो उससे घर चल रहा है। लेकिन इस जगह आप सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन आप अपने प्रधानों को पूछो वो कहाँ खड़े हैं। आज आपके साथ खड़े हैं या सत्ता के साथ खड़े हैं? और आपके साथ खड़े हैं तो यहाँ पे आके धरना देना चाहिए था, यहाँ दरी बिछनी चाहिए। आज यहाँ पे मीडिया वाले बैठने चाहिए। हम तो बैठेंगे, हम तो हमेशा सच के साथ खड़े होते हैं। लेकिन आज चाहिए था कि मीडिया फर्टर्निटी पूरी यहाँ आती। आप कितने लोग आए हो? 15-20 और 15-20, क्या इतना ही मीडिया जम्मू में? और मैं चाहूंगा कि बड़ी बड़ी अखबारें भी जम्मू की, वो भी इस जो बिजली गिरी है इसके घर के ऊपर, इसकी यूनिटी और सपोर्ट में सारे एकत्रित होके आप जितने, और जो भी मीडिया हाउस, जो भी मीडिया कर्मी सच की आवाज उठाता है, उसके साथ कभी कोई ऐसा जुल्म ना हो, ये दुआ करते हुए, उसके बावजूद भी अगर कोई जुल्म होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे और आपकी हमेशा पहली कतार में खड़े होंगे। आपके लिए कोई भी कुर्बानी देनी होगी, हम हाजिर रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और हम एक बार फिर अरफाज गैंग को ये कहते हैं, अरफाज यू आर ए ब्रदर, और हम आपके साथ खड़े हैं। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप अकेले हो। आपका घर भले से ज्यादा खूबसूरत बनाएंगे और विद मॉडर्न एमिनिटीज बनाएंगे। आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम जितना हो सकेगा, हमसे जितने में हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, जितना हो सकेगा करेंगे। हमने अपनी जिंदगी जो है ना, बड़े सभी ने अपने ऐशो आराम से गुजारी है। हमें अगर परमात्मा ने जितना भी करा दिया होगा, हम और भी लोगों से उम्मीद करेंगे, पूरे जम्मू को, कि राइट थिंकिंग पीपल जितने लोग हैं खुलकर दान करें। नंबर इन्होंने दे रखा है ताकि ये अपना घर बना के रह सके। और आगे जर्नलिस्ट को ये आश्वासन मिल जाए इसकी सहायता के जरिए कि जो भी आवाज उठाएगा, जम्मू के लोग उसके साथ खड़े होंगे बिना मजबू मिलत। हम आज केवल कुलदीप शर्मा और उनकी बेटी दानिया, उनका बेहद शुक्रगुजार है जिन्होंने इनको इतना पैसा दिया है, इतना 5 मरले प्लॉट दिया है और भी हेल्प करने की बात